Good afternoon, ma'am. People are joining. Everyone join. Just we'll give them 2 minutes. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Switch on your cameras. Everyone. In the last class, I made you write down. In the last class, I made you write down the steps of selection, right? And in the steps of selection, the first step was the step from where the actual screening starts, right? What was that step? Can you see that mark on the copy? From where the rejection can be done if it is found unsuitable. The rest of you, please switch on your cameras. Can you see that? Screening of applications, from screening of applications it has started. From there till the last round, interview can, till the interview, reference check, all these methods. These are the steps from where the rejection can be done if the candidate is found unsuitable. Can you see that? Am I audible? Am I audible, Ms. Khan? Yes, ma'am. Okay. Okay. The first step is preliminary interview. The second step is receiving applications. The third step is screening of applications. The fourth step is employment test. Then we have employment interviews. Then we have reference checking. Then you have medical examination, and then it is final selection. Okay. So, and I made you write down that from screening of applications to medical examination, rejection is possible if there is any scope for that, which means that rejection can be done at any of these steps. Fine. अब ये बताइए स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आप कोई एग्जाम देते हैं, किसी का फॉर्म भरते हैं, व्हाई इज द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट? Tell me. All of you, do not sit in the class dormant. If you have to be in the class, kindly be interactive. Otherwise, exit the class. Switch on your videos, everyone. The rest of you, I'll start removing you one by one. There's no interaction in the class. Don't make this class a monologue.
दिव्यांशु कुमार, okay, I'll remove you, no issues. अभिषेक कुमार, Muskan, Manjeet and Sunny. I should not be repeating the same thing over and again. If you have so much trouble doing the class, you better do not come to the class. मैम कैमरा ऑन करने पे वॉइस नहीं आता है आपका फिर। सारे क्लास में होता है, सिर्फ मेरी क्लास में होता है? मैम सब क्लास में। Okay. Screening of application. Good afternoon. Why is screening of application important? See, screening of application is important because there are large number of candidates who apply for the same post. Okay. When they apply for the same post, there are two reasons for screening of application. One, that either your application is not correctly filled. In that case, the screening is very important to make you proceed to the further cases. Okay, further further steps to help you move to the further steps. It is important that your paper or in the form of your application should be screened properly. And normally why screening is also important, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है उसमें आपको स्क्रीनिंग के लिए मेथड होता है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और तब उससे जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसको चाहिए वो निकाल लेते हैं। लेकिन जब कई जगह पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जैसे हायर पोस्ट पे अगर आपको लेना होगा तो उस हायर पोस्ट पे क्या करती हैं कि एप्लीकेशन स्क्रीन करने के प्रोसेस से ही they will decide कि how many candidates they have to call for interview. Okay, normally 6 to 7 times the number of seats is called. अगर एक असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट खाली है तो उस असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए नॉर्मली 5 या 6 टाइम्स एम्प्लॉयज को कॉल किया जाता है। This is why screening of candidates become very important. Okay. The next is employment test. The other day I told you कि employment test किस टाइप का होता है और employment test कंडक्ट करने का क्या-क्या रीजंस होता है, राइट? 2-3 टेस्ट का नाम बताइए जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। Can I discuss it? दो तीन टाइप्स का एग्जाम आप लोगों ने खुद बताया था। एप्टीट्यूड टेस्ट सुना है? एप्टीट्यूड टेस्ट मैम, आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, ये Yes, सुना है? तो इतने टाइप के और इससे भी ज्यादा टाइप के साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और भी बहुत टाइप का टेस्ट होता है जो organizations conduct कराती है in order to ensure that you are the fit match for the post they are offering. Okay, aptitude test क्या होता है? We discussed it in the last class also. What is aptitude test? Sunny? मैम इसमें लोगों को परखा जाता है। नहीं, टेस्ट तो सारा परखने के लिए ही होता है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है? जैसे आपने ये सुना होगा कि बैंक का एग्जाम है तो वो लिखेगा एप्टीट्यूड टेस्ट, या कैट का एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट में कि एप्टीट्यूड टेस्ट, यू हैव टू सिट फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाट इज दिस एप्टीट्यूड टेस्ट एंड व्हाई इज दिस एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड? देखो, द रियल यू, तुम असली में कैसे काम करते हो, एक्चुअल में कैसे काम करते हो, ये तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले एप्टीट्यूड, थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एंश्योर द फैक्ट कि आप में फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड कर रही है
उस नीड को केटर करने की कैपेसिटी है. You have the capacity to develop yourself further in the organization. Aptitude test यही देखता है कि आप में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है. एप्टीट्यूड का जनरली सिलेबस क्या होता है? मुस्कान, मैम कम्युनिकेशन हो सकता है. वेट, मुस्कान, Yes, ma'am. एप्टीट्यूड टेस्ट का मोस्टली सिलेबस क्या होता है? मैथ्स होता है. मैम लास्ट क्लास नहीं की. कोई बात नहीं, ये तो लास्ट क्लास से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही जानिए आप क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस. मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, यही सब होता है ना. तो क्यों ये चीज करंट अफेयर्स क्यों ये डाला जाता है? जस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट योर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया जाए तो आप काम सीखने लायक भी हैं कि नहीं है. दिस इज नोन एज एप्टीट्यूड माइंड टेस्ट करने के लिए मैम. हाँ, पर्सनालिटी का वो पार्ट टेस्ट करने के लिए कि वेदर यू हैव स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट और नॉट. देन आईक्यू टेस्ट किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, व्हिच इज नोन एज इंटेलिजेंस टेस्ट. देन फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर द स्पेसिफिक वर्क दैट यू परफॉर्म, ट्रेड टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है. ये किसके लिए किया जाता है? आपने देखा है टाइपिंग का टेस्ट होता है. यस मैम, देखे. यस सुने मैम. हैं एसएससी टाइपिंग का में टेस्ट भी होता है. होता है. एसएससी में Yes, ma'am. होता है, इसमें होता है टैक्स असिस्टेंट Stenography. होता है, स्टेनोग्राफी में भी होता है. टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे भी ग्रुप सी में जो लिया जाता है उसके लिए भी होता Yes, है. ma'am. व्हाट इज दिस टाइपिंग टेस्ट? दिस इज अ ट्रेड टेस्ट, यानी कि आप जिस डोमेन में काम करने के लिए जा रहे हैं उस डोमेन के लिए दिस इज लाइक योर स्किल, दिस एग्जिबिशन ऑफ योर स्किल. ओके, this is trade or proficiency test. Then you have interest test. See, there are many एक organization में जब आप काम करते हैं तो उस organization में बहुत सारा domain होता है. See, for the matter of fact, this is clear कि आपको जिस काम में मन लगेगा, you can only perform that work properly. You will develop further, you will come up with new ideas, you will have more motivation to work in that respective field. That is why it is very important for the organization to know your interest. And sometimes it so happens that you yourself are not aware of the interest that you have in a particular domain. इसीलिए इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. Okay, इसीलिए इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है to know in which area the employees have interest in. Okay, then you have the personality test. Personality test क्या होता है? इंटरव्यू. अपना पर्सनालिटी को ठीक करना मैम. मैम इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू होता है. Why? Why is personality test conducted? जब आपने prelims ले लिया, आपने mains ले लिया, you could have straight away gone for medical examination, you could have gone for some other examination. What is the relevance of personality test? मैम कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए. Okay. To check activity of person. Sakshi was it Sakshi answering? Yes, After ma'am. this time? Okay, can you switch on the camera, Sakshi? It will be better. मैम डिस्कनेक्ट हो जाता. Oh, okay. Tell me, what were you saying? मैम पर्सन का एक्टिविटी चेक करने के लिए. And activity ठीक है. कॉन्फिडेंस वगैरह. Confidence. Confidence. मुस्कान ने भी बोला. मुस्कान also said this confidence thing. And बॉडी लैंग्वेज मैम. very good, body language and communication, right? यस मैम. And your cognitive thinking, your presence of mind. For example, कॉन्फिडेंस. they have mentioned already. देखो, even UPSC जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो फर्स्ट राउंड होता है that is prelims, the second one is mains, and the third one they do not call it interview, they call it personality test.
पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। So personality development or personality test is not just about confidence. It is about confidence, but it is also about cognitive thinking and your presence of mind. How much related or how much aware you are about the surrounding. Your problem solving skills, your body language, as she said, yes. हो सकता है कि आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है आपने मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, but the fact that your body language is poor and you are introvert of a big kind, you're introvert of a big kind, maybe if you are given मैथ्स टू सॉल्व, आपको मैथ सॉल्व करने के लिए दिया गया है, यू वेरी गुड, आप एक रूम में बैठकर एक कोने में बैठकर बहुत अच्छा मैथ सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो आपके प्रीलिम्स के पेपर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपके मेंस से आपका सब्जेक्ट नॉलेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट मे बी यू आर नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू establishing relationship with people, right? Maybe you're not good at that. Maybe you are an introvert person. Maybe your body language is poor. You are not able to, you're found not fit for the work. Your communication is not streamlined. तो ऐसी चीजों को भी देखने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है. देन इंटरव्यू इज ऑल्सो, फिर उसके बाद हम आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू है, चेक करो कॉपी में. है, चेक करके बताओ. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है ना? Yes. व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू? क्या होगा इंटरव्यू? टेल मी. क्यों इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है ये बताइए आप लोग. कैंडिडेट का मैम कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए मैम, और ठीक है. And to check the confidence level, to check the body language, as she said, Personality, Sakshi ma'am. said, personality, fine, communication, your way of thinking, your way of approaching a problem. इसके अलावा apart from this, when you fill up your application form, okay, then your interview is the best method to recheck all of that. Your interview is the best method to recheck whatever you have filled in the application. So, in order to get more details out of you, out of your application, to dig into more of your hobbies, your area of interest, and you in general, interviews are conducted. Okay? अच्छा, out of the things हम आपको एक चीज बताते हैं, आप ये समझिए, इंटरव्यू में हमेशा सीट से ज्यादा कैंडिडेट्स क्यों कॉल किए जाते हैं? मैम इसलिए मैम क्यों? बताओ एक एक करके. राजू वो सेइंग समथिंग. मैम इसलिए कि जितना लोग उसमें सिलेक्ट होता है उतना आप पास तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ में कमियां भी हो सकता है. कुछ लोग, मैम कुछ लोगों में कमी भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा हायर किया जाता है. ठीक है. ओके, अदर्स, बाकी लोग रीजन बताइए. मैम अगर किसी का इंटरव्यू सही नहीं गया, कॉन्फिडेंस लेवल या बॉडी पर्सनालिटी, तो उसके जगह पे हम किसी और को रख सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा और कोई कारण आप नहीं सोच पा रहे? मैम अगर जॉब करने का मन नहीं हो तो उसके अलावा रिप्लेस करके दूसरा को भी रख सकते हैं. रिप्लेस करके नहीं साक्षी, यू डोंट से रिप्लेस करके, वो Yes, बंदा ma'am. खुद ही ज्वाइन नहीं Filling करेगा, है ना? हाँ. सपोज करो तुम साक्षी, यू हैव अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू इन बिग बाजार. ओके, बिग बाजार में आप एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया है. फॉर द सिमिलर पोस्ट यू हैव बीन इंटरव्यूड इन फ्लिपकार्ट ऑल्सो. फॉर द सिमिलर पोस्ट यू हैव अपीयर्ड फॉर, एक लोग तो 2-3 जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं.
for a similar post you have applied for some other e-commerce company, लेकिन तुम्हारी जॉब फ्लिपकार्ट में फाइनल हो गई, ठीक है, फ्लिपकार्ट में फाइनल हो गई, तुमने बाकी तुम्हारी जॉब सपोज मिंत्रा में भी फाइनल हो गई, ओके, यू थॉट कि फ्लिपकार्ट का जो जॉब ऑफर है वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, मेरे घर के पास है, मुझे सूट करता है, जॉब प्रोफाइल भी ज्यादा अच्छा है, पैसे भी अच्छा दे रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तुम? जो पैकेज ज्यादा अच्छा देगा। नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पैकेज, बहुत सारा अदर फैक्टर्स भी देखा जाता है। satisfy हमको जहाँ मिलेगा वहीं पे हम जॉब। हाँ, ये चाहे पैकेज के टर्म में हो या आपके पर्सनल कन्वीनियंस के टर्म में हो। कहने का मतलब कि मान लो कि तुम फ्लिपकार्ट ज्वाइन करते हो, तुमने मिंत्रा से एक सीट वेकेट कर दी, तुमने बिग बाजार से एक सीट वेकेट कर दी। अब क्या होगा, मान लो तुमने वेकेट कर दी, तुमको बोला गया 10 तारीख को आप ज्वाइन कीजिए, तुमने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या होगा? अब अगर उसने ज्यादा लोगों को इंटरव्यू नहीं किया होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? They had to go through the pain of interviewing the people and screening the application all over again. यस मैम। फिर से एप्लीकेशन स्क्रीन किया जाता, फिर से वो उसमें से सिलेक्शन करते, फिर से उतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते और फिर से वो किसी और को इंटरव्यू करते उस पोस्ट पे। This is not just time consuming, this is also a total waste of efforts and total waste of time and money. क्योंकि रिक्रूटमेंट इज अ कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, आपको रिक्रूट करने में ऑर्गेनाइजेशन का पैसा खर्च होता है। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई people are always called in more numbers in interviews than the seats. आप ऐसे भी किसी PSUs का एग्जाम देंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ PSU, जिन PSUs में छोड़ के जाने की संभावना कम होती है, वहां जनरली जो नंबर होता है वो 3:1 के रेशियो में होता है, ठीक है। और जिन PSUs में छोड़ के जाने की संभावना होती है ज्यादा, जैसे कि अगर न्यूक्लियर प्लांट में कोई अपना नौकरी के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की ही जॉब होती है, लेकिन वहां टर्नओवर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि दे आर ऑलवेज इन ऑड लोकेशंस। माइनिंग कंपनी, ये सब ना एक जोन में होती है, राइट? आपको शहर के बीचों बीच तो मिलेगी नहीं, रहना और द कंडीशंस ऑफ लिविंग इज टफ देयर, so there are more chances of people leaving that job than it is for other jobs. That is why people in these interviews are called for more numbers. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है which is a Navratna organization of government of India, which is Neyveli Lignite Corporation based in Chennai. Okay. For its graduate trainees, it calls in the ratio of 6:1. यानी हर एक पोस्ट पे 6 बंदे को ये कॉल करते हैं। Such is the chances of leaving. Then you have the other organizations. Generally, people are called in 3:1 का रेशियो। Generally ये रेशियो क्या है? What is the general? Yes, 3:1 का रेशियो है। Okay? और ये सिर्फ जॉब वेकेट अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए ही नहीं होता है, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। ज्वाइनिंग के टाइम तक भी सब कुछ फाइनल हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, जिस दिन ज्वाइन करने बोला उस दिन पीपल दे डोंट टर्न अप, जिनको कहीं और जॉब लग जाती है या कुछ वैसा होता है, दे जस्ट डोंट टर्न अप। ओके, तब उस केसेस में सेकेंड लिस्ट पे जो वेटिंग में लोग होते हैं उनको कॉल किया जाता है, because the organization cannot go through the pain of calling the people all over again and doing the same process all over again. It's a lengthy process, it is time consuming, cost consuming, both in terms of money and efforts. Okay, समझ में आ रहा है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. What is the next step? Checking references. देखो, checking references is mostly for private organizations. Checking references में क्या होता है, जो रेफरी होता है यानी जो सजेस्ट करता है, तो आप भी अपना CV बनाएंगे, जब आप अपना CV बनाएंगे तो उसमें रेफरेंस डालते हैं, उस रेफरेंस में जो नाम होता है, the name is generally of your last employer,
yeah, not just last employer, your current employer, somebody who is not your relative, somebody who is not your blood relations. क्योंकि अब आप अपने रेफरेंस में पापा का नाम डाल देंगे and somebody calling your father to know how this boy is or how this girl is, so what will your father say? Of course he will say that yes, he is very good, even if someone has been to jail. यही होगा ना. That is why relatives का नाम preferable नहीं होता है. इसके अलावा you can give the name of somebody from your organization or some distant person who knows you. ये रेफरी अगर कोई रेप्यूटेड पोस्ट पे है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, if he is in a reputed, this person, if this who's making references is at a good position in the organization, his references, they definitely weigh a lot on your CV. ठीक है, आपको रेकमेंड करने में, आपका रेफरेंस देने में वो हेल्पफुल होगा और उसको कंसिडर किया जाएगा. लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी someone who is referring you will give an honest and unbiased opinion about you. ये आप समझ सकते हैं कि आप अपने सीवी में वैसे लोगों का नाम डालेंगे ही क्यों जिससे आपकी बनती ना हो या जिससे आपको लगता हो कि वो बहुत फेयर आपके बारे में नहीं बोलेगा. Understood? Yes, ma'am. Next one is medical examination. Why is medical examination conducted? अपने knowledge से. Okay. Physical fitness for what? Specify it, Sakshi. Physical fitness of what? मैम एम्प्लॉय का. You have to mention it, that physical fitness for performing the job. For performing the job you have to mention it. क्योंकि अगर आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आई साइट थोड़ी ऊपर नीचे भी होगी तो आपको बाकी जॉब्स के लिए लिया जाएगा, लेकिन पायलट जॉब के लिए लिया जाएगा? नो मैम, नहीं ले पाया. आर्मी के लिए लिया जाएगा? एयरफोर्स के नहीं. लिए नहीं लिया जाएगा. इसीलिए यू हैव टू मेंशन दैट फिजिकल फिटनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर you to perform that job, to perform the job with that capability. That is physical fitness. Okay? Yes ma'am. इसके अलावा कोई कारण जिसके वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता हो, ये बताइए. आप सोच सकते हैं इसके कारण, बताइए. मैम की ऑर्गेनाइजेशन में फिट रहना हो और किसी को मतलब उस बीमारी का शिकार ना हो मैम. किस बीमारी का? मैम कोई बीमारी है एम्प्लॉय को मैम, और जब मेडिकल हो रहा है तो नहीं पता कर वो एम्प्लॉय जब जॉब में ज्वाइन करता है तो मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. ये एक रीजन होता है. अगर आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज मतलब which can be passed from, फैलने वाला, which can be passed from one person to another through contact. So if you are suffering from any kind of communicable disease, जैसे टीबी, sorry मैम टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, वेरी गुड. और सबसे ज्यादा अभी तो आप बहुत कॉमनली ये जानते हैं कि कोविड. बहुत सारे इंटरव्यूज जिसने, बहुत सारे एग्जाम जिसने अपना रिटन का एग्जाम लेके इंटरव्यू को पेंडिंग किया था, उन्होंने ये मैंडेटरी किया था कि आप, क्योंकि देखो जो सेंट्रल एग्जाम होता है उसको देने के लिए लोग ऑल ओवर इंडिया से आते हैं. yes, उसका जोन डिस्ट्रीब्यूट होता है. जैसे आप जैसे पटना से हैं तो आपके लिए नजदीक होगा कोलकाता वाला हेडक्वार्टर, तो आपको कोलकाता हेडक्वार्टर दे दिया जाएगा इंटरव्यू करने के लिए. जो साउथ में है उसको चेन्नई का हेडक्वार्टर ज्यादा कन्वीनियंट मिलेगा. जो नॉर्थ में है उसको दिल्ली का हेडक्वार्टर कन्वीनियंट मिलेगा. तो अब जो भी है, लेकिन पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरियस, नॉट जस्ट वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स बट फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑल्सो. इंटर स्टेट ट्रैवल भी होती थी. तो उन लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन दे दी गई. देखो बिजनेस का एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे चीजें चेंज होती हैं. उनको गाइडलाइन दे दिया गया कि आप 72 आवर्स पहले का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे, तभी आपको इंटरव्यू किया जाएगा. ओके? बिकॉज कोविड वाज अ कम्युनिकेबल डिजीज.
यस और मैम। आप अगर Yes. ये डिजीज लेकर, ये इन्फेक्शन लेकर के जाएंगे तो बहुत फेयर चांसेस है कि आप उनके स्टाफ को भी इन्फेक्ट कर देंगे। दे कुड बी सीरियस कैजुअलिटी लाइक डेथ तक हो सकता है, ठीक है। सो और एंड यू कैन ट्रांसफर इट टू द अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंटरव्यू आल्सो हु हैव कम देयर फॉर इंटरव्यू। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये RT-PCR इम्पोर्टेंट था, वहां अगर आप RT-PCR लेकर नहीं गए थे तो उन्होंने एंटर ही करने नहीं दिया। आपका सर्टिफिकेट बाद में देखा जाएगा। दे एट फर्स्ट हैंड डिड नॉट अलाउ यू टू एंटर द प्रेमाइसेस। सबसे पहले चेक होने वाली जो चीज थी दैट वाज एन RT-PCR सर्टिफिकेट 72 आवर्स पहले का। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं कि पहला फिजिकल फिटनेस, व्हेन यू से दैट फिजिकल फिटनेस यू हैव टू मेंशन दिस फिजिकल फिटनेस फॉर द जॉब। क्योंकि कुछ जॉब्स हैं जैसे पुलिस का, आर्मी का, यहाँ पर क्राइटेरिया कंप्लीटली अलग है। कलर ब्लाइंडनेस का क्राइटेरिया अलग है। कुछ जॉब्स हैं जहाँ कलर ब्लाइंड इज ओके फाइन, दे आर परमिटेड। तो किस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसका फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कौशल ने बोला, मैम कम्युनिकेबल डिजीज रहेगा तो सबको वो कम्युनिकेट होगा, ठीक है। जैसे टीबी साक्षी ने बोला, एंड आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ कोविड, ये आप समझते हैं। तीसरा कोई फैक्टर कुछ सोच सकते हो? किसी ने अगर मेरा पेरोल का क्लास किया होगा ठीक से तो वो बता देंगे। सोशल सिक्योरिटी याद है, पढ़ाए थे हम? यस मैम। Can you just recall? I'll not ask you. I know you have forgotten it. Just tell me. Social security याद है कि social security नाम की कोई चीज पढ़ाए थे हम? यस मैम याद है। याद है। सोशल सिक्योरिटी में क्या पढ़ाए थे हम? एक एक्ट पढ़ाए थे, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। 1923 पढ़ा था। याद है? जिसमें हम ये आपको बताए थे कि अगर कोई हर्ट हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, या उसको किसी तरीके का कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, तो ही इज एलिजिबल टू गेट कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ये याद है? नहीं याद Yes, है ma'am. तो भी इट्स ओके, हम फिर से बताएंगे। लेकिन याद है तो कुछ है तो बताइए आप। मैम देखो। इसमें सिकनेस ये सब पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? सिकनेस इतना याद है, एक हाँ, टॉपिक था। ठीक है, चलो कुछ तो याद है। कॉम्पेंसेशन में होता ये है कि अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं, इफ देयर इज एन इंजरी इन while working in the organization, either you are disabled or the person is dead, okay, either you are disabled or the person is dead, या फिर किसी तरीके का ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब जो आपके ऑक्यूपेशन से निकल के आता हुआ डिजीज है। जैसे कि एस्बेस्टस फैक्ट्री में कोई काम करेगा तो बहुत चांसेस है कि उसको एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। अब कोल के फैक्ट्री में, यानी कि कोल माइनिंग में जो मजदूर काम करते हैं, जो इंजीनियर्स काम करते हैं, कोल बहुत बहुत बारीक कोल उड़ता है। जो कोल का बहुत बड़ा एरिया होता है, किलोमीटर्स तक एरिया होता है, वहां जो घर होते हैं उनके ऊपर असर ये होता है कि अगर आप तुरंत डस्टिंग कर देंगे और 1 घंटा के बाद आप वहां पर उंगली ऐसे करके देखेंगे, यू विल फील द कोल पार्टिकल्स। यानी उस एरिया में हर जगह हवा में कोल का पार्टिकल्स रहता है। ओके, द डस्ट पार्टिकल इज देयर इन द एयर। तो आप दिन रात वही काम कर रहे हैं, वही ब्रीथ कर रहे हैं, देयर आर फेयर चांसेस कि यू गेट एन ऑक्यूपेशनल डिजीज। अब इस ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हर्जाना देगी, लेकिन इसकी शर्त ये है, द कंडीशन इज दिस दैट you should have worked for at least 6 months in the organization to claim this occupational disease. 6 महीना आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तभी आप इस ऑक्यूपेशनल डिजीज को क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब मान लो कि किसी को एस्बेस्टोसिस पहले से ही था और मेडिकल एग्जामिनेशन के समय में उसका चेक नहीं हुआ। मैम ये कौन सा डिजीज है? और ये एस्बेस्टस फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसको होता है। एस्बेस्टस का भी, जैसे टोबैको फैक्ट्री में काम करने वाले को क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेनिक चीजें आप यूज करते हैं। हाँ, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर 6 मंथ्स के पहले
आप ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं और आप बीमारी लेकर आ रहे हैं, but it went unnoticed during medical examination. You came in the organization and after sometimes you claim that you had this problem. Okay, because of working in this organization, whereas truth of the fact is that you were already carrying it when you entered the organization. तो इस तरीके के अनवारंटेड क्लेम्स से जो सही नहीं है उससे भी बचने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का करना जरूरी होता है, क्योंकि फिर कॉम्पेंसेशन ऑर्गेनाइजेशन को मोटी रकम कॉम्पेंसेशन में देनी पड़ती है। अंडरस्टूड? यस मैम। व्हाट इज द लास्ट स्टेप? फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। प्रोबेशन पीरियड समझते हैं आप लोग? यस। क्या होता है प्रोबेशन पीरियड? प्रोबेशन क्या होता है? ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है? एम्प्लॉय को कुछ दिन ट्रेनिंग दी जाता है मैम। नहीं, नॉट लाइक दैट। जैसे आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप परमानेंट एम्प्लॉय मैम ज्वाइन नहीं ट्रेनिंग करते के ना। दौरान अगर कुछ हो जाए तो ठीक से बताओ, जो भी अंडरस्टैंडिंग है इस बात की उसको ठीक से बताओ। जैसे तुम एक एग्जाम क्वालिफाई किए, सब कुछ हो गया, तुमको फाइनल लेटर मिल गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको 6 महीने या 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे रखती है ना, प्रोविजन पे रखती यस है। मैम। क्या होता है वो? क्यों रखती है? मैम वो करे एम्प्लॉय को के लिए मैम, हम्म, एम्प्लॉय अच्छा करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करे, इसीलिए कोई गलती ना हो। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड होता ही है सीखने के लिए, ये तो होता ही सीखने के लिए है। मैं वर्क ट्रेनिंग में मैम जो वो सीख सके। सीख सके। और तो अच्छा, ट्रेनिंग में अगर प्रोबेशन पीरियड में नहीं रखेगी तो क्या वो सीखेगा नहीं? ऐसे भी सीखेगा मैम, तब भी सीखेगा। Then what is the reason for putting them in provision? अलग अलग रहता है ना काम, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क सीखने के लिए मैम। What I am saying is, see Sakshi, what I am saying is that अगर उनको ट्रेनिंग में नहीं भी रखा जाए, प्रोबेशन पीरियड में नहीं भी रखा जाए, तो भी वो काम सीखेंगे। फिर प्रोबेशन में रखने का रीजन क्या होता है? सनी कुमार, सनी बोलो। मैम विश्वजीत वेटिंग में है। No, the class is about to end. I'll not let him enter now. It is, what time is this? This is मैम उसका 3:42. नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। No, he did not try it. This is the first time he is appearing. Who? Who is disconnected? मैम उसको प्रोविजन पीरियड में इसलिए रखा जाता है मैम, See, प्रोबेशन पीरियड में इसलिए रखा जाता है एम्प्लॉयज को बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट no matter how good your process of recruitment was, no matter how good your method of selection was, there are still chances of a wrong employee entering into the organization. Okay, there are still chances of a wrong employee entering into the organization. In that case, the real work and the real aptitude of an employee can be known only when he is or she is at the workplace. Okay, that is why, this is the reason why the employees are put on probation, that although it is learning period, still the organization holds the authority to suspend or to send out the employees who are completely unfit for the organization. Okay, मैम के बाद भी एम्प्लॉय को बाहर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। हालांकि इतना खराब कोई नहीं होता है जिसको कि निकाल दिया जाए बाहर, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपका एक एग्जाम होता है विच प्रूव्स कि आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट की है। तो पहली बार अगर कोई फेल हो जाता है तो दूसरी बार उसको मौका दिया जाता है फिर से एग्जाम में रीअपियर करने के लिए। लेकिन सपोज somebody has gone hysterical, दिमाग सही नहीं है, ओके,
कुछ कारण से, because the real problem or the real personality of a person will never manifest unless and until you are at the workplace. Okay, so this way the organization still holds the authority to send out the employee who might be completely unfit for the organization. Understood? ठीक है, समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। अब एक मैटर डिस्कस करो। नेक्स्ट क्लास में we have this class we have completed recruitment and selection. In the next class we will do training and development. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तुम लोग को। ये बताओ कि ये जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बनाया जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को डिजाइन किया जाता है, ये क्या सोच के डिजाइन किया जाता है? What is the relevance of test? एक टेस्ट से आप कैसे जज कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए फिट है कि नहीं? रिपीट अगेन। से देखो देखो, the exams are conducted, these employment tests are conducted on the assumption that there is direct correlation between the test that is conducted and what is required of that employee at the workplace. यानी ये टेस्ट इस चीज को मानती है कि जो टेस्ट पेपर डिजाइन किया जा रहा है, जिस तरीके का टेस्ट भी डिजाइन किया जाता है, इसका एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉय के आउटपुट पे और हम क्या जज करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय से। द सेकेंड थिंग इज, जब ये एग्जाम लिया जाता है, आप कोई भी रिटन एग्जाम जब देने जाइएगा तो उस एग्जाम का एक नॉर्मल बेल कर्व बनता है। ओके, अगर हैड आई बीन इन द क्लासरूम, आपको बोर्ड पे समझाते हैं कि ये एक कर्व बनता है, नॉर्मल कर्व। इस नॉर्मल कर्व में क्या होता है? इस नॉर्मल कर्व में ये होता है कि देयर आर एम्प्लॉइज जो बहुत पुअर परफॉर्म करेंगे, देन देयर आर एम्प्लॉइज जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं? एवरेज परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को, इसी चीज को दिमाग में रख करके कंडक्ट किया जाता है कि दिस टेस्ट विल अज्यूम अ नॉर्मल कर्व। Some employees will perform very poorly, some employees will perform exceptionally good, and the majority of it will perform like average, normal curve, bell shaped curve जो होता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को इसी तरीके से कंडक्ट किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, एनटीपीसी जैसे है, ये सब साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करती है, ये जानने के लिए कि इन द लॉन्ग रन ये एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ एज यू विल अपीयर फॉर मोर सिलेक्शंस, एज यू विल go to third year, you will understand more about employment and selection and different kinds of tests through your seniors, through your relatives, cousin, brothers and sisters. आप जितना जानेंगे ज्यादा, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कैसे डिफरेंट होता है और क्या कहाँ पर अप्लाई होता है। ओके, we will end the class here, and if there is any question, you bring it on in the next class. Otherwise, we will start with training and development, new topic in the next class. Okay? मैम, हाँ बोलो। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे किया जाता है? There is a psychologist, okay? There is a psychiatrist who is there. ये इंडस्ट्री के बहुत experienced लोग होते हैं, सिर्फ 15-16 साल जो लोग काम कर चुके होते हैं। ये ऐसे भी बोर्ड के इंटरव्यू में बैठते हैं लोग। Sometimes they just sit to observe your body language. आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको फील होगा कि कोई एक लोग हैं बोर्ड में जो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। That person is only concerned about observing you,
observing your body language, observing how you're speaking. They are so experienced in industries that they can make out whether you are lying, whether you're fabricating, and whether you're telling the truth or not. Okay. And for psychometric test, there are different tools जो कि use होता है करने के लिए. Okay. यस मैम. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनटीपीसी वगैरह है और भी बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, दे डू दिस टेस्ट. We will end the class here. In the next class, we'll start the new topic, training and development. Okay.